अच्छा तो अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ गए MIPT। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैं MIPT जाऊँ और वहाँ के स्टूडेंट्स से उनके एक्सपीरियंस लूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान से हमारे हैं दानिश भाई। हम इनसे पूछते हैं कि ये इधर क्या कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं भाई। बिल्कुल ठीक। सुनाए कैसा मौसम लग रहा है आपको? मौसम भाई जिंदगी में पहली दफा मई में, इवन रशियंस के लिए भी मई में पहली दफा वो स्नोफॉल देख रहे हैं। सही। इट्स प्रीटी अनयूजुअल हियर, बट आई गेस इट्स गुड। हाँ ये बात इट्स गुड, वी हैव टू है। लिव इन द मोमेंट्स। सो एंड वी आर फ्रॉम द एरिया जहाँ पे टेम्परेचर 48 डिग्री 50 या डिग्री। या या मैन, फॉर श्योर। तो ये है। तो सो बाय द वे, मैं दानिश हाँ सिद्दीक, हाँ, पाकिस्तान पंजाब गुजरांवाला से मेरा ताल्लुक है। यार गुजरावाले से होके आ मतलब गुजरात नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। ओके, सो मेरी डिग्री एंड हुई थी बैचलर्स की 2018 में। एंड इन 2018 आई गॉट स्कॉलरशिप फॉर इटली इन यूनिवर्सिटी ऑफ पैदुआ, बट ड्यू माशाल्लाह। टू दैट वीजा इन yeah, for embassy issues we have to face in Pakistan, यस। especially for European countries. I didn't even get the appointment to submit my visa, so it's pretty unusual. But at that time, I gave a test for NUST. I got admission in my in the program of my choice. But then I decided, if I have to do my masters, I have to get scholarship. I have to do it यस from फॉर अ some मास्टर। foreign country on scholarship. So that's the basic goal for me in 2019, and I didn't study for that year, but believe me, it's worth it. रशिया मतलब आप वर्थ इट कह रहे हैं रशिया। Yeah, it's worth it, man. चले तो I have applied for Open Doors. ओपन I डोर्स। have already a friend here from my bachelor's, Nasir Ali. He was in MAPT too, and he told me about everything. I applied for Open Doors. I got selected, uh, even though my name was third last in the list. But It's Alhamdulillah, okay. I got selected, Okay. and it takes the process. Believe me, is very easy. I think it's the easiest scholarship you can get in Yes. Pakistan. It's the easiest and very economical because you don't have to show any bank account, any bank statement. Yeah, you can And get your visa easily. Even I get my visa from Russian embassy without appointment. oh, Yeah, that's great. so it's pretty great. तो चलिए आप मुझे ये बताएं कि आपकी डिग्री यहाँ पे कौन सी है मास्टर्स में? मैं यहाँ पे मॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी से कर रहा हूँ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर्स। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर इस टाइम मेरा चल रहा है, लेकिन साथ ही मेरा सबसे पहली जो चीज़ एजुकेशन सिस्टम से हट के अपने, अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूँ, अच्छा। जिस वजह से मैं रशिया आना चाह रहा था, यहाँ का इनका रिसर्च कैलिबर, बिल्कुल। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, everything is up to the mark, man. Okay. Uh, I'm studying in MIPT, but my project is right now in Institute of Bioorganic Chemistry. It's from the USSR. Okay. So I'm this in is the the main thing. Those who are like were saying that Russia is not a good place, so you can now Bro, compare the Russia with all the other countries of the European. believe me, if you want the quality education, Russia is the best option for you. तो चले मुझे बताएं कि what is the main difference जो आपने यहाँ के देखा हो? In education system, हाँ जी। well, if I start with the pros, teachers here are very like helpful. Yes. They're if you want to ask them like one thing for 10 times or even 20 times, they will not hesitate. They will not get fed up from you. They'll give you answer every time you ask Yes. them. Okay. This is the The best thing. education system here, especially in MAPT, is still from the USSR time. Okay, so even though my degree is medical biotechnology, but I have to study some subjects that I didn't even study since my matric from till my bachelor's. Like Okay. I have to study in the very first semester here the probability. Are you alright? It's okay. Yes. Yeah, theory of probability, and according to our professor, it's very basic. Okay, but for us, it's very hard. We were 8 students in our class, and 3 of them already left the country. They Oh. got expelled even after the first semester, and I'm the only one in my class from Pakistan. He is the only Like lone survivor here. yeah, you can say that. Okay. So But somehow I guess it's a pro and a con too.
for some people. Mhm. Like I passed it. Now I feel like it's good for me that I know some basic probability theory. It's gonna help me in my research and other things. But those guys who fail, it's not their like mistake. Yeah, like from metric for like 6 years, 2 years of your intermediate and 4 years of your bachelor's, we didn't even touch the basic math. And you know Yes, these that's things is in the best. Pakistan. Yes. And the It's same very thing obvious. is in Europe, right? Yes. They teach you only the subjects related to your degree. But here, in most of the universities, you can see that you have to study other subjects that are not even related to your degree, and you can get expelled due to these subjects. Yes. We also have it. Even here, until bachelor's, no matter you're from you are an international student or the Russian native, you have to do physical education classes in MEPT. You have to pass the physical education exam in every semester. If you didn't make it, you are expelled. You are failed. I've seen Russian guys, international guys, getting expelled due to this just physical education. Okay, so what is the mark scheme? Like यहाँ पे जो है सिस्टम, तो मार्क स्कीम कैसे है? उर्दू में ज़्यादा बताएं क्योंकि हमारे केपी साइड से और इधर से कुछ हैं जिनको आसान अल्फाज में हम बताना चाहिए. अच्छा, तो यहाँ पे CGPA वाला सिस्टम नहीं है. यहाँ पे पॉइंट्स हैं फ्रॉम 1 to 10. ओके, यहाँ पे 2 तरह के एग्जाम होते हैं. एक ग्रेडेड होते हैं और एक होता है ज़चोत. दे कॉल इट ज़चोत इन रशियन. ज़चोत में ये होता है कि जस्ट पास और फेल. No matter if you get 3 or if you get 10 out of 10, you are pass. Okay. Even the guy who gets a minimum like 3 marks to pass, he's still pass. बस वो threshold एक इन्होंने पूरा Yeah. करना है. So they actually didn't affect your CGPA at the end or the Okay. final grading. Okay. But the graded ones, you have points for them from 1 to 10. To pass, you have to get 3. Okay. Okay. And then I exactly don't remember. Like 4, 5, 6 is somehow considered as satisfactory, or I guess satisfactory, and then 7, 8 is good, like хорошо, and 9, 10 is отлично, excellent. Okay. So that's how it works here. So my question is also related to the things which are related to your marks. Like just HEC में basically if they go with the assignments, Yeah. assignments की ज़्यादा marks होते हैं Yeah. क्योंकि physical exam बहुत ही कम, मतलब normally रखा हुआ है. तो यहाँ पे इसमें कैसे होता है? Like for the graded exams, for the graded subjects, like they have Mhm. points from 1 to 10, and we have to give final exam. Okay. Okay. But for ज़चोत, I'm sorry, ज़चोत के लिए ये होता है कि जिसमें सिर्फ पास और फेल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ पास और फेल है, उसमें हम लोगों को असाइनमेंट्स, डिफरेंट कंट्रोल टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग Okay. सेमेस्टर. लाइक 2 कंट्रोल टेस्ट होते हैं ड्यूरिंग सेमेस्टर, एंड इफ वी मेक इट, we don't have to give the final exam. ठीक Okay, है. we are already passed. But if we fail in any of those control tests, like 1 or 2, we have to give the final exam to get passed. Open book होता है No, I didn't experience it right now till now here. और online exam भी होते हैं, मतलब आप इधर hostel में बैठ के. Yeah, most of the exams are online, like presentations, quiz. ये But चीज़ है यहाँ पे. और आपके क्लासेस शाम के टाइम होती है अक्सर, जैसे हमारे HEC में शाम में ही देते हैं सारे classes. I guess मास्टर्स की क्लासेस no. मतलब आफ्टर 4 No, और no, 3. no. Actually, like पूरे वीक में 5 दिन होते हैं, वर्किंग डेज होते हैं हमारे लिए. Like in first semester, every day, most of the working days, we have to come to the university for classes, and it's like from 9 a.m. to 5 p.m. Okay, for most of the days. But now in second semester, on Monday we have 2 classes. एक क्लास लेने के लिए 1.5 घंटे का सफर करके एक इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है. अच्छा. ठीक है, वो क्लास हमारी खत्म होती है, उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट ऑफ बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, अपने रिसर्च वर्क कर रहा हूँ, वहाँ पे क्लास होती है प्रोटियोमिक्स में. हाँ, और ये क्यों है? इसलिए कि जो बेस्ट पर्सन इन द फील्ड, like best scientist, best known scientist here, you can say that in Russia right now at current time, they are teaching us. So that's why we have to go to different institutes for classes. बिल्कुल, इसमें कोई शक भी नहीं है. रशिया में आपको एजुकेशन के सिस्टम बहुत अच्छा है. मतलब यहाँ लोगों को पता नहीं है, जो आ रहे हैं तो उन्हें नहीं पता, जिसकी वजह से ये वीडियोस जो अक्सर मैं बना रहा हूँ ताकि लोग मेरे अपने कंसेप्शंस जो है रशिया के, like बहुत चेंज हुए. बहुत चेंज हुए. हाँ, तो ये है.
और इसके बाद में ये बताएं कि आपका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी भी साथ होती है, क्योंकि लोग यहाँ पे आते हैं कि यार मैंने आके स्कॉलरशिप तो है, हमें पता है स्टाइपेंड कम है, क्या आपको स्टाइपेंड पे फर्दर इंक्रीमेंट भी देते हैं देखिए अगर जी, अच्छे ग्रेड्स हैं? मेरे साथ जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने बहन भाई या कुछ फॉरेनर्स भी मुझसे रब्ता करते हैं आने के लिए कि हम MIPT आ रहे हैं, हम काम कर सकते हैं इसके साथ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। देखें, अगर तो MIPT आ रहे हैं, बिलीव मी, आप काम नहीं कर सकते। अगर आप MIPT में रहते हुए काम करते हैं, रियल सेंस अगर आप डिग्री हासिल करना चाहते हैं, डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो, और वो डिग्री वर्थ इट होगी, हाँ। बिलीव मी। मतलब लेकिन आपको अगर 2 आप साल पैसों का, के पीछे हैं या पैसे कमाने के चक्कर में आ रहे हैं तो MIPT ना आइएगा, सीधी सी बात कह रहा हूँ। आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद घर पहुंचेंगे सीधा। हाँ ये 3 सीधी सी पाकिस्तानी बात है। हमारे गए हैं, मैं उनसे मिला था लास्ट टाइम, वो मूवी नाइट पे आए थे ना, हाँ, तो वो बेचारे चले गए हमारे, नो, इसी वजह से गए वो भी। नहीं, वो इस वजह से नहीं गए। अच्छा। ये बेसिकली जो फर्स्ट थिंग मैंने आपको बताई, USSR का अच्छा, एजुकेशन अच्छा। सिस्टम, स्टिल नाउ वी हैव टू स्टडी those subjects that we ठीक है, didn't ठीक है, even ठीक touch है। since वो 6 years or कंपल्सरी 8 थे। years is compulsory, and they go back due to this subject, and believe me, it's not their mistake. चले ठीक, सही है, मतलब यहाँ के आपको नई चीज सीखने की मिलेगी, लेकिन आपने सीरियस होकर सीखना है, ये तो Serious. सीधी बात है। अगर डिग्री चाहते हैं, डिग्री वर्थ इट होगी अगर आप पढ़ेंगे तो, अगर आप नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद आप मुझे ये बताएं, मतलब पाकिस्तान और इसकी एजुकेशन का तो बड़ा, मतलब कंपैरिजन भी हम नहीं कर सकते, काफी चेंज है। अच्छा, तो एक बात मैं आपको इस सवाल का जवाब नहीं दे सका पहले। हाँ, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे सारे ग्रेड्स एक्सीलेंट थे, ठीक है, लाइक 9 out of 10 or 10 out of 10, but I missed the opportunity to apply for an extra stipend. I didn't apply. If I applied, I'm receiving 15,000 rubles right now. 15,000, Yeah. okay, And if I When we if are I getting applied for that at the before deadline, right now I'll be getting 30,000 rubles from my university for Okay, stipend so- for my due to my grades. तो ये एक अच्छी बात है कि 15,000 और 30,000, तो फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा, मतलब हमें 2,000 मिलता है HEC में, हमें भी एक्स्ट्रा मिल जाता है वो अलग अलग स्कॉलरशिप में, उसके लेकिन अलावा भी फाइनेंशियल असिस्टेंट आपका यहाँ पे बेसिक हमें ही 15,000 है। बेसिक 15,000 में मिल Masters रहा है। में। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान से जो MIPT में आ रहे हैं, उनको प्रॉपर मेल्स गई हैं सब MIPT की तरफ से कि स्टाइपेंड आपका 8,000 है। अच्छा, अगर 8,000 भी हो ना, आपको मतलब कुछ ना कुछ करके आप इधर कुछ ना कुछ करके आप सर्वाइव कर सकते हाँ, हैं। क्योंकि आप इधर, ये आपको दोबारा मेट्रो इतनी यूज नहीं करनी पड़ती जो कि हमें यूज करनी पड़ती है HEC के लिए। आपके कैंपस मैंने देखे मेन पास ही अक्सर यूनिवर्सिटी के क्लासें- लिए नहीं करनी पड़ती, लेकिन हाँ। मैं आप देखें, हफ्ते में मैं 2 या 3 दिन लैब जाता हूँ। 2 घंटे लैब जाने में लगते हैं और 2 घंटे लैब से आने में तो लगते इसका हैं। मतलब है ठीक कि अगर 7-8 हजार रुपए और एक्स्ट्रा लगा लेंगे आप, देखिए, अगर आपको घर से 3-4 हजार रुपए 5,000 रुपए मंगवाने भी पड़े तो हाँ। मैक्सिमम 15 से 16 हजार पड़ते हैं, और इससे ज्यादा खर्चा डेफिनेटली आपका इस टाइम पाकिस्तान में होगा। हाँ बिल्कुल अपना मंथली, तो अगर वो सही। आप उतने मंगवा भी लें तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर आप अपनी डिग्री पे फोकस करना चाह रहे हैं। नहीं तो मेरा अभी एक क्लास फेलो है, मैं उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगा, बिलीव मी, वो काम भी कर रहा है, रिसर्च वर्क, वो अपने रिसर्च पेपर भी लिख रहा है, वो यूनिवर्सिटी क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, प्रेजेंटेशंस भी दे रहा है, और उसके अलावा उसे जैसे ही फ्री टाइम मिलता है काम वो जॉब भी कर रहा है पार्ट टाइम। ये तो टाइम मैनेजमेंट हमारे लोगों में मेरे ख्याल में लैक ठीक कर रही है पाकिस्तान में, क्योंकि हम बड़े लेजी होते हैं। मैं पहले अपने आप से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, तो मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि यहाँ आने से पहले और बाद में डिफरेंस तो आया आपको, तो क्या ऐसी चीज़ें थी जो आप चाह रहे हैं कि यार मैं अगर पाकिस्तान में पहले से ये करके आता तो मुझे इधर थोड़ा आसानी होती, या जो है लोग जो आना चाह रहे हैं, अभी आ रहे हैं, तो उनको आपको एक कोई सजेशन या एडवाइस कर दे कि वो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करके फिर इधर आए? देखें, अगर तो आप किसी रिसर्च रिलेटेड डिग्री में आ रहे हैं तो आपके पास स्टिल टाइम है। आप लोगों ने सितंबर में आना है, 3 से 4 मंथ किसी जगह बगैर पैसों के इंटर्नशिप कर लें किसी लैब में, जिस तरह मेरी फील्ड है, रिसर्च वर्क है, मैं एंटीबायोटिक्स पे काम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ फील होती है कि मुझे काम करना चाहिए था, मुझे टाइम मिला था, मुझे अपने फील्ड रिलेटेड काम करके ही आना चाहिए था, फ़ायदा होता उस चीज़ का। लेकिन स्टिल मुझे एक एज मिला क्योंकि बैचलर्स में मेरा प्रोजेक्ट था और मुझे पता है कि किस तरह काम करना है, और बिलीव मी, मेरा सुपरवाइज़र इस चीज़ से बहुत खुश होता है। और अगर आपका सुपरवाइज़र आपसे खुश है तो आपके पास स्टाइपेंड के अलावा बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सुपरवाइज़र आपको आपके प्रोजेक्ट में, लाइक फ्रॉम 3rd semester, he will start to pay like not less than 20,000 rubles or 30,000 rubles. चलिए, 1 लाख Yeah, फ्यूचर
कहाँ देखते हैं? फ्यूचर मैं अपॉर्चुनिटीज पे बिलीव करता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रशियन फ्रेंड्स भी मुझसे करते हैं, इवन टीचर्स भी करते हैं, एंड माय आंसर इज सेम फ्रॉम द डे वन। आई बिलीव इन अपॉर्चुनिटीज। जहाँ मिले। मैं यहाँ आना भी नहीं था चाहता, ठीक है। मैं इरास्मस में अप्लाई किया हुआ था, मैं शेवनिंग में अप्लाई किया हुआ था, मैं ऐसी स्कॉलरशिप्स के पीछे था, सर। ठीक है। लेकिन मुझे उस दोस्त ने कहा कि भाई कर दे, हाँ ना कहीं हुआ तो आ एक जाएगा हाँ, यहाँ पे। कुछ तो हो। लेकिन मैं आ गया, यहीं पे रिस्क लिखा था, यहाँ पे आ गया। वही बात ठीक है है। कि आपने कहीं और जाना है तो थोड़ा लंबे रास्ते से चले जाते हैं। जी, लाजमी आप बिल्कुल। डायरेक्ट एरास्मस पे नहीं गए, बिल्कुल। इंशाल्लाह इसके बाद चले और जाओगे। एंड द थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस इज, if you have excellent grades in all of your degree, like in all of your semesters, in each subject you will get a diploma known as the Krasnaya diploma. That is the red diploma from MEPT. And You are going to get the PR it's worth it. You can get easily a PR and pass. due to that diploma, passport. Even in foreign countries you can get job due to that diploma if they knew the worth of this. यार ये आपने ना अभी मेरी शायद ये पहली वीडियो होगी जिसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मैंने अच्छी सी भी इतनी बताई। तो काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि यार हम यूरोप जा सकते हैं कि नहीं। तो यूरोप जाना है तो जगह ये अच्छी है, लेकिन बात वही कि आपने डिग्री ज़बरदस्त करनी है। यहाँ के थोड़ा बहुत आपको हाँ ये होता है, 1 साल के बाद आप जॉब भी कर लेते हैं, काम शाम कर लेते हैं। मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि आप यूरोप ही जाएंगे या कहीं भी जाएंगे। बात ये है कि यहाँ पे अगर आपको डिग्री मिल गई है ना, आपकी डिग्री वर्थ इट है, आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। वही चीज़ है कि शॉर्टकट नहीं तो किसी और रास्ते से, ठीक है। मेरे ख्याल में हमारी काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो इंशाल्लाह हाँ बाकी सब छोड़ के आप थोड़ी थोड़ी साथ रशियन भी सीखें, क्योंकि यहाँ पे आपको रशियन चाहिए होगी, मतलब बोलनी पड़ती है। मेन लैंग्वेज बैरियर ही है, तो बाहर आपको मार्केट में यूज होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा टाइम दिया और आपने ज़्यादा एक्सप्लेन किया, इतना मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास इतने क्वेश्चन नहीं थे, आपने फर्दर उनको खोला। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी वहाँ से आने वाले हैं उनके अभी थोड़े दिमाग खुल गए होंगे और उनको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इंशाल्लाह अगर कोई MEPT में आ रहा है, ऑलरेडी मैं एक ग्रुप में हूँ जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो MEPT में आ रहे हैं इस ईयर, उनसे मैं राब्ते में हूँ। तो उन्हें वो आप ग्रुप का लिंक दे दे, मैं ग्रुप का लिंक दे देता हूँ। सवाल बहुत पूछते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत पूछते हैं सवाल। अगर तो सेंसिबल क्वेश्चंस होंगे तो मैं हैप्पीली रिप्लाई करूंगा, इवन रात को भी रिप्लाई कर दूंगा जिस टाइम मैसेज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चंस वैलिड ना हुए तो मैं नहीं करूंगा यार। ये मैं बता सकता हूँ, बड़े केयरिंग बंदे और बहुत अच्छे बंदे हैं। ये हमारे पास अच्छी सी आते हैं और यहाँ से आते हुए 1 घंटा पूरा लगता है। 2 घंटे, हाँ 2 घंटे तक नहीं करना, मैं ग्रुप तब मेंशन करूंगा, ठीक है। ठीक हो गया। बाकी जो MIPT आ रहा है जबरदस्त जगह, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में, वो आप मेंशन कर दें जिसमें भी, तो इंशाल्लाह। ओके, शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।